Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we are going to start a new chapter, that is getting to know about plants. So students, in this chapter we will be studying about plants in detail. We will get to know about plants, how they carry out the process of photosynthesis, types of plants which you see around you, right? In this chapter we will be studying about that. Okay. So students, you must have seen a variety of plants which are growing around you. Like you see many of plants in your school, outside your home, and in the park. You find that some of the plants are small in size, some of them are big in size, and some of them are medium in size. Right? So, do you find any other difference in these plants apart from their height? Yes, we find a lot of differences in these plants. For example, some of the stems of the some of the plants are soft, whereas the stem of other plants are hard in nature. And other differences that you see in them is the shape of their branches, size of their branches, types of the flowers and kinds of the flowers, color of the flowers, right? So you see a variety of plants that grow around you, right? And we will get to know about the different parts of the plant in this chapter also. So which will help you to understand the differences between the plants which are of the different kinds, right? यानी कि जो different types of plants हैं जो कि हमारे अराउंड ग्रो कर रहे हैं उनको हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, right? So see the parts of the plant. First we will discuss the parts of the plant. You must have studied about the parts of the plants in the junior classes also. So the part of the plant which is under the ground, this is the part of the plant which is under the ground and it is known as root. So if someone asks you the definition of root, what will you say? The part of the plant, the part of the plant which is अंडर द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूट, राइट? ठीक है, जिसको हम हिंदी में जड़ बोलते हैं. फिर इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट है. ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड लेवल का. तो ग्राउंड के नीचे जो प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया कि वो क्या है? रूट है. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम. क्या बोलते हैं उसे? स्टेम. तो आप इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो यू विल राइट इट एज द पार्ट of the plant which is present above the ground is called stem, right? Okay. Then comes the leaves. Leaves are the food factories of the plant. Why they are called so? Because the leaves are going to synthesize their food in these leaves only. Okay, they are going to synthesize their food by the process of photosynthesis. Photosynthesis की help से ये leaves अपना खाना खुद बनाती हैं. और ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं उसकी ब्रांच. क्या बोलते हैं? ब्रांच, राइट? ये पार्ट क्या है? उसका फ्रूट. क्या है? फ्रूट, राइट? ओके, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, जिसमें मेन आता है हमारा, क्या आता है मेन हमारा? मेन आता है हमारा स्टेम, एंड आता है हमारा रूट, एंड आती है लीव्स, एंड आता है फ्रूट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम लोग किसी अपने आसपास कोई बोटानिकल गार्डन हो या छोटा सा या कोई बड़ा गार्डन हो या चिल्ड्रंस पार्क हो, वहां पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वहां पर ग्रो कर रहे होते हैं.
तो हम उसमें से ब्रांच, स्टेम और लीफ और फ्लावर और फ्रूट को देखकर उनमें से पहचान सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे ये बनाया, तो आप अपने बुक में एक प्लांट का डायग्राम बनाएंगे इसी तरीके से और उसे इसी तरीके से लेबल भी करेंगे कि ये स्टेम है, रूट है, फ्रूट है, इन सबको आप लेबल भी करेंगे, राइट। देन कम्स दी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, एंड नाउ we are going to classify the plants in 3 categories. हम plants को 3 categories में divide करते हैं depending upon their height. जो plant छोटा होता है उसे हम बोलते हैं herbs. क्या बोलते हैं? herbs. जो herb से थोड़ा सा बड़े size का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? shrubs. और जो बहुत बड़े size के होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? trees. ठीक है, तो हमने height के basis पर क्या बोला कि हमने plants को 3 category में divide कर दिया. हर्ब्स यानी कि बहुत छोटे साइज के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। इनकी जो स्टेम होती है ना बड़ी वीक होती है, ठीक है, बड़ी फ्लेक्सिबल सी होते हैं। जैसे कि धनिया आप अपने घरों में देखते हैं या पुदीना देखते हैं। धनिया और जो पुदीना होता है बड़े छोटे छोटे से हाइट के होते हैं, ठीक है, इतने इतने से हाइट के होते हैं और कभी कभी तो इतने इतने देखने को मिलते हैं हमें। उनकी स्टेम बड़ी वीक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, अपने हाथ से ही आप उसको तोड़ सकते हैं, फ्लैशी होती है उनकी स्टेम। वैसे अगर हम श्रब्स की बात करते हैं तो श्रब्स जैसे कि तुलसी एक तरह का क्या है? श्रब है। रोज प्लांट क्या है? वो भी एक तरह का श्रब है। यानी कि इसकी हाइट जो होती है वो इस प्लांट से थोड़ी सी बड़ी होती है। ऑल्दो इस पिक्चर में थोड़ी छोटी दिखाई हुई है, बट श्रब्स की जो हाइट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। श्रब्स में मोस्टली जो झाड़ियां आती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो रोज हम इसमें ले लेते हैं, तुलसी को हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इसकी जो स्टेम होती है ना, इससे थोड़ी सी हार्ड होती है। क्या होती है? थोड़ी सी हार्ड होती है। यहाँ पर इसकी स्टेम जो होती है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है, लेकिन इसकी स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की ना दिखाई देगी, थोड़ी सी वुडी यानी कि लकड़ी जैसी सी अपेयर होती है, ठीक है। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्मॉल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। मीडियम साइज के प्लांट्स उनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। और बिग प्लांट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम जो होती है वो वीक होती है और सॉफ्ट होती है, यानी कि टेंडर होती है, इसीलिए हम इनको हर्ब्स बोलते हैं। ब्रांचेस इनके अंदर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि धनिया है, मस्टर्ड है, जैसे कि सरसों है, देन पिटूनिया है, देन वीट है, पैडी है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? आपके जैसे धान और गेहूं है, ये किसके अंदर आ जाते हैं? ये आते हैं हर्ब्स के अंदर, ठीक है। देन आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? थोड़े से बड़े साइज के होते हैं हर्ब्स से। इनकी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है देखते हैं हम। इनकी स्टेम जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और इसके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। देखिए ब्रांचेस कितनी सारी हैं, तभी तो हमें ये झाड़ी जैसा अपेयर होता है, ठीक है। ब्रांचेस बहुत सारी हैं तो झाड़ी जैसा सा अपेयर होता है हमें, ठीक है। देन श्रब्स के अंदर ब्रांचेस आर प्रेजेंट एंड दीज अराइज फ्रॉम नियर द बेस ऑफ द प्लांट। और ये कहाँ से अराइज होती हैं? प्लांट का जो बेस होता है ना वहीं से अराइज होती हैं इसकी ब्रांचेस, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया था आपको, रोज है, चाइना रोज है, लेमन है, नींबू का है, लैंटाना है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? इनको हम बोलते हैं श्रब्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं टॉल प्लांट्स। टॉल प्लांट्स यानी कि बड़े साइज के प्लांट्स। जो बड़े साइज के प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो भी कैसी होती है? हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड। देख रहे हो आप, हार्ड होती है। अगर आप उसको अपने हाथ से तोड़ना चाहो तो आप उसको नहीं तोड़ सकते हो, तो इसका मतलब इसकी स्टेम क्या हुई? हार्ड हुई, वुडी हुई, यानी कि लकड़ी जैसी सी अपेयर होती है हमें। वुडी तो होती ही है क्योंकि लकड़ी भी हमें इसी से मिलती है। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। इसमें जो ब्रांचेस होती है ना वो नीचे से ना अराइज होकर वो कहाँ से अराइज हो रही है? देखिए उसके ऊपर से अराइज होती है, ठीक है। कहाँ से अराइज होती है? इसके ऊपर से। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? नीम है, पीपल है, अमलतास है, मैंगो है, जामुन है, ये सारे के सारे पेड़ हैं, ठीक है। क्या है? पेड़ हैं। तो हमने प्लांट्स को इसी तरह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। तो हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, श्रब्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं और ट्रीज सबसे बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। अब हम लुक एट द स्टेम्स ऑफ द मनी प्लांट, मिंट, गोर्ड, ग्रेपवाइन, पी एंड क्यूकम्बर। मनी प्लांट यानी कि मनी प्लांट तो आपने देखा ही होगा। मिंट यानी कि पुदीना, गोर्ड यानी कि लौकी,
ग्रेप वाइन यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं वो, पी यानी कि मटर, और क्यूकम्बर मतलब कि खीरा। तो आर दीज प्लांट्स अदर देन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? क्या ये प्लांट्स हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से अलग हैं? हाँ, बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये हमें अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे कि मनी प्लांट जो होता है वो हमें क्लाइंबर की फॉर्म में दिखाई देता है। मनी प्लांट कैसा दिखाई देता है? क्लाइंबर की फॉर्म में, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। You will find that the stem in these plants are weak. इनकी जो स्टेम होती है ना इन सभी प्लांट्स की, जिसको मैंने नाम लिया आपको, मिंट, मनी प्लांट, गॉड, ग्रेपवाइन, पी एंड क्यूकम्बर, इन सबकी स्टेम जो होती है ना बड़ी वीक होती है। तो इनको ग्रो करने के लिए या साइज में बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसी सपोर्ट की। तो मान लीजिए ये सपोर्ट है, और मनी प्लांट क्या करेगा? इसके अराउंड इस तरह से क्वाइल होता होता ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। देखा है आपने? तो इसका मतलब इसकी स्टेम जो होती है वो कुछ कुछ ऐसी ही होती है, वायर जैसी सी वीक होती है, और किसी सपोर्ट के सहारे इस तरह से कॉइल होकर वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्लाइंबर नहीं होते, वो जमीन पर रेंग रेंग कर बढ़ते हैं, इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट, यानी कि जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, जो कि सीधे नहीं खड़े हो सकते, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और क्या करते हैं? ग्राउंड पर स्प्रेड होते रहते हैं। मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं वो ऐसे सीधे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उनकी स्टेम वीक है, तो वो क्या करते हैं? ऐसे ग्रो करते हैं, इस तरह से ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, जिसमें कि आ जाता है मिंट, और उसमें आ जाता है गॉड प्लांट्स। मिंट यानी कि पुदीना, और गॉड का मतलब होता है लौकी। तो लौकी और पुदीने के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, क्योंकि दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। वो क्या करते हैं? ग्राउंड के साथ साथ जो है वो बढ़ते हैं। लिखते हैं हम इसको यहाँ पर, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये जो सारी डेफिनेशंस है ना, इनको आप अंडरलाइन करते चाहिए, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ठीक है। देन आता है प्लांट्स विच क्लाइंब अप विद सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मनी प्लांट जो होता है किसी चीज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो द प्लांट्स विच क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि आसपास जो भी उनको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उनका सहारा लेकर वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। इन क्लाइंबर्स में कौन कौन आ जाते हैं? इसमें आता है मनी प्लांट, और इसमें आता है पी प्लांट। ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेम। अब स्टेम, रूट और लीव्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होता है, इट इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम। मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम। मेन एक्सिस क्या होती है? स्टेम क्या होता है? ये स्टेम है। ठीक है। तो ये मेन एक्सिस है। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम, जिससे कि ब्रांचेस भी अराइज होती हैं, और ब्रांचेस पर हमारी क्या निकलती है? लीफ निकलती है। तो ये जो शूट सिस्टम है उसका जो मेन एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है। अब स्टेम पर और क्या क्या चीजें होती हैं? स्टेम पर द प्लेस वेयर द ब्रांचेस एंड द लीव्स अराइज ऑन द स्टेम। अब ये जो स्टेम है ना, उस स्टेम का जो साइड से जो पार्ट निकल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। अब ये ब्रांच जिस रीजन से निकल रही है, मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, ब्रांच मान लीजिए इस रीजन से निकल रही है, और इस ब्रांचेस के ऊपर हमारी लीव्स बन रही हैं। तो इस स्टेम का वो पार्ट जहां से ब्रांच निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो स्टेम का वो पार्ट जहां से ब्रांचेस अराइज होती हैं, दैट इज नोन एज नोड। और ऐसे बहुत सारे नोड्स होते हैं प्लांट के ऊपर जहां से जो है ब्रांचेस अराइज होती है। मान लीजिए एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो बहुत सारे नोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड। ठीक है। और नोड क्या हुआ? नोड वो रीजन होता है जहां से ब्रांचेस अराइज होती है।
तो हमने नोड और इंटरनोड को भी समझा। नाउ द टिप ऑफ द स्टेम और अ ब्रांच bears a bud called the apical bud or the terminal bud। अब इस स्टेम की जो ये टिप होती है, या तो ये या फिर इसकी जो ब्रांच है उसकी जो टिप होती है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एपिकल बड। क्या बोलते हैं? एपिकल बड, या इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड। ठीक है, तो दो नाम से हमने बुलाया है इसको, एपिकल बड या टर्मिनल बड। एपिकल बड कहाँ प्रेजेंट होती है या टर्मिनल बड कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है स्टेम के टिप पर, या फिर इसके साइड से जो ब्रांच अराइज हो रही है उसके टिप पर। ठीक है, तो ये होता है एपिकल बड या टर्मिनल बड। अब ये जो बड होती है ना, ये प्लांट को लेंथ बढ़ने में हेल्प करती है। प्लांट की अगर लेंथ बढ़ानी है तो उसके अंदर ये जो एपिकल बड होती है ना, बड़ा हेल्प करती है। देखिए हम कैसे हेल्प करती है। ये है हमारा प्लांट, उसके ऊपर प्रेजेंट है ये एपिकल बड। क्या प्रेजेंट है? एपिकल बड। ये एपिकल बड क्या करती है? ये एपिकल बड प्लांट की जो लेंथ होती है ना, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर एपिकल बड के अंदर जो सेल्स होते हैं दे कंटिन्यूअसली डिवाइड, वो डिवाइड करते 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 प्लांट की हाइट को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, और साइड बाय साइड जैसे मैंने बताया प्लांट की जो ब्रांच निकल रही है उसकी हाइट को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स की हाइट किसकी वजह से इंक्रीज करती है? एपिकल बड की वजह से इंक्रीज करती है, जो कि स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होते हैं और ब्रांचेस जो होती हैं उनके टिप पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने टर्मिनल बड को भी समझा। अब आता है दिस बड हेल्प्स इन द लेंथवाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द लीव्स मेक एन एंगल विद द स्टेम। अब जो लीव्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वो स्टेम यानी कि मेन स्टेम के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं हम एक्सिल। क्या बोलते हैं? एक्सिल। ठीक है, तो बर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज एक्सिल्स। अब यहाँ ये जो एक्सिल्स आपको दिख रहे हैं, जो लीव्स प्रेजेंट हैं, इस लीव और इस ब्रांच के बीच में जो एंगल बना, यहाँ बताऊं मैं आपको, ये लीव्स हैं, ठीक है, और ये हमारी मेन स्टेम है। अब लीव्स और जो ब्रांच के बीच में, जो स्टेम के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सिल। और यहाँ पर अगर कोई बड प्रेजेंट है, फ्लावर की बड प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। क्या बोल देते हैं उसको? एक्सिलरी बर्ड्स, जहां से कि फिर से कोई ब्रांच अराइज होती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ हर्ब द स्टेम इज ग्रीन। हमें बताया कि हर्ब्स के केस में स्टेम जो होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, या जिसको हम टेंडर भी बोल देते हैं, ऐसी होती है। ठीक है, एंड बट इन अ ट्री इट बिकम्स हार्ड। ट्री के केस में जो ब्रांच होती है वो हार्ड हो जाती है, वुडी हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये जो हार्ड स्टेम है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ठीक है, तो हार्ड स्टेम विच इज प्रेजेंट इन ट्रीज इज कॉल्ड एज ट्रंक। इट इज ब्राउनिश इन कलर। हमें पता है ये ब्राउन कलर की हमें दिखाई देती है, लेकिन क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर स्टेम जो होती है वो कैसी होती है? वीक होती है। क्यों होती है वीक? क्योंकि उसकी जो स्टेम होती है ग्रीन होती है, पतली होती है, इसलिए वो क्या होती है? वीक होती है। तो इस तरह से आप क्या करें, अपने अराउंड जो भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनकी स्टेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, एंड उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए। Now there is an activity which is activity 1 to show that the stem conducts water. अब हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, तो पानी वो कहाँ से लेता है? पानी लेता है जमीन से, और जमीन से पानी लेने में कौन हेल्प करता है? प्लांट की रूट्स हेल्प करती हैं। तो रूट्स करती क्या है? रूट्स जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं and it transports to the upper parts of the plant. तो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको कहाँ भेज देती हैं? प्लांट्स के अपर पार्ट्स में भेज देती हैं। तो प्लांट्स के अपर पार्ट्स में पानी को भेजने का काम कौन करती है? वो करती है स्टेम।
ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि स्टेम जो होती है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, रूट्स से लेकर प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स हैं वहां पर वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक ग्लास लेना पड़ेगा, ग्लास में पानी लेना पड़ेगा और रेड या ब्लू कलर की इंक लेनी पड़ेगी और एक कोई भी सॉफ्ट स्टेम ले लीजिए आप। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। अब आप क्या करेंगे, आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है, 1/3 इसको पानी को भरा और इसके अंदर आप क्या डाल देंगे, रेड या ब्लू कलर की इंक डाल देंगे, रेड या ब्लू कलर की इंक डाल देंगे, उसके 2-3 ड्रॉप्स। अब क्या हो जाएगा, पानी जो होगा लाल या नीले रंग का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेम डालेंगे, जो आपने कटिंग जिस स्टेम की ली है उस स्टेम को उसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर बाद यानी कि 2-3 घंटे के बाद आप देखते हैं कि स्टेम जो होती है ना, पूरी की पूरी जो होती है वो रेड, अगर आपने रेड कलर की इंक डाली है तो रेड कलर की स्टेम हो जाएगी और अगर आपने ब्लू कलर की इंक डाली है तो स्टेम क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। विच मीन्स दैट स्टेम जो होती है ना उसके अंदर कुछ एक ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे वेसल्स होते हैं जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं। तो यही एक्टिविटी में दिखाया गया है, ये देखिए एक्टिविटी में यही दिया हुआ है। स्टेम को हम लोग इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर, हमने ग्लास लिया उसको 1/3 भरा, उसके अंदर ब्लू कलर की या रेड कलर की इंक डाली और स्टेम को इसके अंदर डाल दिया। आप देखेंगे कि स्टेम जो होती है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी और पानी को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो कभी कभी हमें लीव्स का कलर भी, या अगर फ्लावर होता है उसके ऊपर तो फ्लावर का कलर भी हमें चेंज दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देगा या आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो इसका मतलब वाटर जो होता है इट मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस द लीव्स, और वाटर जो है स्टेम से मूव करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है, लीव्स तक पहुंच जाता है। और अगर हम स्टेम को, मान लीजिए ये स्टेम है हमारी, उसको हम इस तरह से काट कर देखते हैं तो हमें कौन सा व्यू दिखाई देगा, स्टेम के अंदर हमें इस तरीके का व्यू दिखाई देता है और ये इसके अंदर इसके वेसल्स होते हैं जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, इस एक्टिविटी से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि स्टेम जो होती है प्लांट की, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है। अब हम देखेंगे लीफ। ठीक है। चलिए लीफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राइट। थैंक यू।